ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ, ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਵਿਲ ਰੇਜ਼ ਦੈਟ ਵੌਇਸ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣਨਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੜਮ ਚੱਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਵਕਤ ਆਏ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਤਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। बिल्कुल, दैट इज़ सो ट्रू दीदी। और हम चाहते हैं कि हम अपने जो मज़हब है उसे पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रखें और होना भी चाहिए। पॉलिटिक्स और मज़हब को आप इकट्ठे नहीं कर सकते, और जब ये इकट्ठे होते हैं देन यू थिंक कि वाई, क्या हमें अपने पॉलिटिक्स फ्रीडम राइट्स नहीं है? हमारे अब मज़हब हमें बताएंगे कि किसको वोट करना है, किसको नहीं वोट करना है, किसको वोट देना है, किसको नहीं वोट देना। ये तो फिर हमारे जो राइट्स है उसको छीन लिया गया है। एक पासे कनाडा ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਆਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਨੀਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੀਤ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਗੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹਤਵਰ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਸ ਸ਼ਰਮਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਯੈਸ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਲੂਗਾ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਗਲਤ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਹਤਵਰ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੈ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਲਟਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੁਝ ਕੁ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਗਲਾਪਣ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਅਰੇ ਦੋਗਲਾਪਣ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਅਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। Let's hear what our caller has to say. Media Waves, hello. अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ, पीरजादा अर्ज कर रहा हूँ, कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाए क्या हाल है? बस ठीक है। वो सॉरी, मैंने अभी देखा आपका मैसेज, वो खत्म हो गया, ये चल रहा है? जी आप एयर पर है, बोलिए। रिगार्डिंग द खुतबा और ईद और उसका तकद्दुस, उसके बारे में बात हाँ जी। करनी जी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जितने भी इवेंट होते हैं, पब्लिक इवेंट, हर एक की अहमियत होती है। रिलीजियस इवेंट उनकी अलग अहमियत है, पॉलिटिकल इवेंट उनकी अलग अहमियत है। इसी तरह कोई और बर्थडे हुआ, ये हुआ, मौका और मुनासबत जिसे हम कहें ना। कई सालों से ये BCM में अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करती है कि जब मौसम अच्छा हो तो बाहर प्रोग्राम ईद की नमाज है, और ईद की नमाज जो है वो सुन्नत यही है कि जो आम मसाजिद है उनसे बाहर निकल कर बड़े मैदान में की जाए। आई वॉज इन सऊदी अरेबिया, तो वहाँ भी खुले मैदान में, छोटी मसाजिद के बजाय ना खुले मैदान में जाके नमाज ईद अदा की जाती थी जी, ताकि लोगों को तकद्दुस पता चले कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, एक दूसरे से मिले और ये वो। जी, लेकिन ये है कि ईद की नमाज में सवाए रिलीजियस के, क्योंकि ईद की नमाज में खुतबे से पहले, नमाज ईद से पहले तकबीर का जारी रहती है थ्रू आउट। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। इसे हम कहते हैं तकबीरात। इसका विर्द जो है ना, जब आप घर से नमाज के लिए निकलते हो उसके लिए जारी रखते हैं। उसका मेन मकसद है कि अल्लाह को कंसंट्रेट करें, इस दिन को कंसंट्रेट करें अल्लाह के नाम के लिए सिर्फ। और जब तक आप नमाज पढ़ें, बल्कि हम 3 दिन तक पढ़ते हैं, थर्ड डे ऑफ द ईद आफ्टर द असर प्रेयर, तब ज़ोहर प्रेयर तब खत्म करते हैं ये। अगर हम घर में भी आके नमाज पढ़ते हैं ना, तो इतनी अहमियत है। तो अब इस अहमियत से सोच लें कि जिसकी ये अहमियत हो कि 2 दिन कंटिन्यूस मजीद ईद के बाद भी आपने नमाज के बाद पढ़नी है, तो नमाज ईद में सिर्फ कंसंट्रेशन जो है ना, अल्लाह से डायरेक्ट, जिसे हम कहते हैं ना डायलिंग, अल्लाह से डायरेक्ट डायलिंग की बातें होनी चाहिए। और डायरेक्ट डायलिंग के दरमियान कोई आयल नहीं होना चाहिए, कोई इंटरप्रेशन नहीं होता है। जिससे पॉलिटिकल लीडर या और कोई लीडर अगर ये बुलाते हैं, कोई भी बुलाए, तो उनको पहले ये साइड पे खेमे के अंदर टेंट के नीचे बैठा देते थे। इसमें बुराई मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि उनको ये शो कराना कि वी आर इन मासेस, लेकिन ये है कि इस दफा मैंने भी फील किया व्हेन आई वेंट ओवर देयर, आई टुक द पिक्चर एज अ मीडिया, इसमें मुझे कोई वो कहने की बात नहीं है, लेकिन मैंने ये फील किया कि आप पब्लिक के आके 4-5 हजार लोगों के सामने एक रो लगा दी थी, और वो रो लगाई, वो उन्होंने बैठाया। लेकिन मैं थोड़ा सा खिटका, लेकिन जब स्टेज पे आने शुरू हुए ना, तो फिर वो बात जो है ना, जो पिछले सालों करते रहे ये लोग तो मुराद BCM में हमारी है, मैं तो उसमें ऐसी वो बात ही नहीं कह रहा कि जिससे तो इनको फ्रंट पे ला के उनका ये ख्याल था कि जो, क्योंकि उन्होंने स्टेज पे उनको बुलाना था इसलिए उन्होंने नजदीक बैठाया। लेकिन हमारा अब कॉन्सेप्ट ये है इस बात का कि उस दिन उनको सिर्फ दिखाना या मीटिंग एंड ग्रीटिंग साइड पे रख के उनको दिया, स्टेज पे मौका नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उससे ईद की कंसंट्रेशन खराब हुई। आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸਲਟਿਵ ਹੈ। मैं थोड़ा जिहा सोचला कि जब असी ना साडे मुस्लिम कम्युनिटी दा जड़ा कट होना जड़ा ना वो किहड़े मौके ते हुंदा है। ज़्यादा बैंकुएट हॉल शादियां ते हो गया, उत्थे बुला लिया, उत्थे मैक्सिमम 600 500 700 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 800 किसी ने ਵੱਡਾ तीर मारिया तो बॉम्बे बैंकुएट हॉल चो करके 800 कट कर लिया। लेकिन है कि जब तक इन्हों साडी, क्योंकि असी 2 ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ। एक तो जो सेंसिस होंगे ना
ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਖਬਾਰ ਆਪਣਾ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਕੱਢੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ 5000 ਨਿਕਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਨਿਰੇ 5000 ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਸਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਕਪਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਆਈ ਐਗਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਸ ਦਿਖਾਣਾ ਦੀਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ they have to sit on the side tent। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਆਣਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ, लेकिन आवन लेकिन वो साइड पे आप ये नहीं सोचते कि जो पॉलिटिशियंस है उनको मुस्लिम कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उन्हें मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कोई इवेंट करना चाहिए जिसमें वो ईद के लिए मुबारकबाद दे, मीट एंड ग्रीट करे? किया था दीदी, किया आशियाना जी। अभी पिछले महीने छोटी ईद के बाद आई वाज देयर इन कौन सा सिग्नेचर बैंक्वेट हॉल जो है ना पकवान के ऊपर, शायद उसके ऊपर उन्होंने बुलाया था। यूनाइटेड ने बुलाया था या लिबरल्स कनाडा? नहीं बीसी एनडीपी बुला रही है और ये और कोई नहीं बुलाता, ये मैं आपको गारंटी यही मैं जानना चाहती थी। और दूसरी बात ये है कि ईद का जो नमाज है वो मुसलमानों के लिए है, और मुसलमान वहाँ ईद के नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं अपने नियत से कि हम ईद के नमाज पढ़ने जाते हैं, और ये लोग वहाँ कुर्सी लगाकर बैठकर अपने वोट बैंक के लिए खड़े होते हैं या बैठते हैं वहाँ चेयर पर। क्या ये सही है इस्लाम के लिए? मैंने आपसे कहा ना कि इस दफा जो फीलिंग हुई है ना कि बिल्कुल फ्रंट लाइन में फ्रंट बैठे तो लोगों की कंसंट्रेशन उनको ही देखती रही, फिर उनको सुनना भी पड़ा। इस दफा जो है ना वो मैं समझता हूँ, मेरे पर्सनल व्यू यही है कि इस दफा जो है ना सही नहीं हुआ कि उनको फ्रंट लाइन पे बैठा के और उनको स्टेज पे ला के। लेकिन मैं इससे जरूर इस बात पे हूँ कि वो आप ना बुलाएं, बल्कि उनको पता होना चाहिए कि भाई ये ईद का मौका है, तो यहाँ जहाँ मस्जिद सॉरी वो है पब्लिक मीटिंग हो रही है वो आए, लेकिन साइड पे रहे या पीछे रहे। साइड इज बेस्ट ताकि वो सारों को देख सके और बाद में वो मिले। इसमें मेरा ख्याल है आशियाना जी कोई वो नहीं है, क्योंकि अगर जब तक हम हमारी ये नंबर दिखाने की एक बेहतरीन मौका होता है, साल 2 साल, अक्सर तो आपको पता है 3-4 साल तो हुआ ही नहीं है उसकी वजह से, पेंडेमिक की वजह से। अब इस साल हुआ है ये, तो इसलिए इसको नंबर हमें दिखाने में इसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरा पर्सनल व्यू है, आपका अपना व्यू होगा, लेकिन ये है कि दे कैन नॉट सिट ऑन द फ्रंट लाइन, दे कैन नॉट कम ऑन द स्टेज। इससे मैं जरूर आप इतने सालों से न्यूज़ मीडिया में है, मिरेकल न्यूज़ मीडिया में है, आपसे एक सवाल ज़रूर करना चाहती हूँ। क्या पॉलिटिक्स और रिलीजन एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए या ये दोनों सेपरेट है? अगर पॉलिटिक्स और रिलीजन एक दूसरे के साथ मिल जाए तो हमारे पॉलिटिक्स का क्या हाल होगा कनाडा में, ये आप बताइए। अच्छा, देखिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिफोर 1400 हिजरी जब मस्जिद मदीना नबवी बनाई तो उसमें सिर्फ नमाज अदा नहीं होती थी, नमाज अदा नहीं होती थी, बल्कि सियासी मसाइल, दूसरे मसाइल भी हल करने के लिए इवन नॉन मुस्लिम डेलीगेशन भी आते थे। नहीं, हम एक्चुअली कनाडा की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। जनाब आप कह रहे हैं नहीं, लेकिन देश देखिए जब हम कोई रिलीजियस की जब हम बात करेंगे, क्योंकि जब हम रिलीजियस की बात करते हैं, रिलीजियस सिर्फ हमारे मुसलमानों की नहीं है, सिख, हिंदू, क्रिश्चियन, सारे रिलीजन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे ये तो नहीं पता, शायद दीदी बता सकेंगी कि दूसरे त्योहार हैं जो वहाँ के होते हैं, जिस तरह वैसाखी है, वैसाखी इज डिफरेंट थिंग, लेकिन जो गुरुद्वारों में या जो मंदिरों में होते हैं क्या वहाँ ये जाते हैं? ये मुझे वैसे
मालूम नहीं है, क्योंकि मैं गया नहीं है कभी ऐसे मौके पे। उस तरह मैं जाता रहता हूँ, कोई अगर वहाँ कोई इवेंट हो, मैंने कवर भी की है, लेकिन इस तरह नहीं कि अगर उनका कोई खास वो है तो उसमें ये वहाँ जाते हैं, ये नहीं। ये दीदी जरा बताएं ताकि मुझे पता रहे। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਉਹ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਨੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹਾਂ, this is the point। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, यानी कि आन चो कोई वो नहीं है। जितने भी सिख पॉलिटिशियंस हैं वो गुरुद्वारा जरूर जाते हैं, जितने भी मुसलमान पॉलिटिशियंस होंगे वो मस्जिद जरूर जाएंगे, लेकिन मस्जिद में अगर कोई इवेंट हो, हमारा कोई भी मुसलमान पॉलिटिशियन वहां मौजूद नहीं था। सवाल ये है, लेकिन ये आपने जो बात की है ना, पहले हमें मुसलमान पॉलिटिशियन बनाने के लिए कोई सीट लेने पड़ेगी। हाँ, कैंडिडेट होना अलग बात है भतीजा, सीकिंग फॉर द MLA MP, दैट इज द अदर थिंग। बट हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो जो सॉरी जहाँ भी इस वक्त BC में मुसलमान नूर तालिब हैं उधर MP वैंकूवर में, वो अपने उधर वैंकूवर में गए होंगे, वहाँ भी बड़ा एक आर्ट्स काउंसिल नहीं है सर, वो वैंकूवर आर्ट्स काउंसिल में, उसमें भी 5-10 हज़ार लोग जो है ना, 10 हज़ार से ज़्यादा ही लोग जाते हैं, वहाँ हो सकता है। लेकिन आपकी इस बात से कि रिलीजियस को और पॉलिटिक्स इन दोनों को सेपरेट लाइन होनी चाहिए, लेकिन मैं इस बात से मुतफिक हूँ कि अगर आपने मासेस दिखाने हैं ताकि आपका वोट बैंक आपका पता हो कि भाई ये मासेस इतने 5,000 हैं, 10,000 है, इनकी कोई अहमियत है, लेकिन दे शुड कम, ना कि आप लोग उनको इनवाइट करें और ये वो। हाँ, ये जरूर है कि हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन आपका एक ये इनविटेशन नहीं होना चाहिए जी आप जरूर आना है, आपने स्टेज पे बैठना और आपने ये तकरीर करनी। इससे मैं जो है ना एग्री नहीं करता। एक और बात आपसे जरूर पूछूंगी, जिसके बाद आपसे हम इजाजत लेंगे। जिस तरह से आपको अच्छी तरह से ये बात मालूम है कि हमारे जो BC यूनाइटेड का जो लीडर है केविन फाल्कन, वो कई सालों से पॉलिटिक्स से बाहर थे, और पॉलिटिक्स से जब वो बाहर थे तो क्या उन्हें मुस्लिम कम्युनिटी उस वक्त नज़र नहीं आई थी? आज वो पॉलिटिक्स में आ गए दोबारा तो उन्हें एकदम से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए प्यार जाग गया कि मुस्लिम कम्युनिटी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं जाकर उनके साथ ईद सेलिब्रेट करूं। वैसे NDP पार्टी जो है उनको तो अब हमेशा हम लोगों ने ईद सेलिब्रेशंस में देखे हैं, लेकिन एकदम से इनका छलांग लगाना ईद सेलिब्रेशन में केविन फाल्कन का कुछ समझ नहीं आई। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बिल्कुल, जब मैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरे हाथ में तो कैमरा भी था, लाइव वीडियो भी मैं बना रहा था, मेरा लाइव चल रहा था फेसबुक पे। आई वाज सरप्राइज, शॉकिंग सरप्राइज जैसे कह सकते हैं, क्योंकि मैं केविन से, आप भी इतने सालों से, मैं भी उसको देखता रहा हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर था, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर था, और मैंने इसको बैंक्वेट हॉल में आते जाते देखा, लेकिन नॉट इन द मुस्लिम कम्युनिटी इवेंट। जो मैंने आज जो आप बात कर रही है ना, इसकी मैं तायीद कर रहा हूँ कि he came in the Muslim community first time at the open stage। तो इसका मतलब है कि हमने उसको बुला के अपनी अहमियत, वो हमारी अहमियत समझता। बॉटम लाइन हमारे इस सारे सवाल की ये है कि पॉलिटिशियन शुड नो आवर वैल्यू, आवर masses, not we should tell them that we are such and such or so and so and we are so many masses। ये हमारे अंदर डिग्निटी होनी, इंटेग्रिटी होनी चाहिए कि
कि हमें अपना आप दिखाने के लिए दूसरों को मोहताज नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरों को पता होना चाहिए कि हमारी भी कोई इज्जत है, हमारी भी कोई वैल्यू है। मुस्लिम कम्युनिटी इधर किसी भी कंट्री से हो, डजंट मैटर, मुस्लिम कम्युनिटी का जितना भी इवेंट है उनकी एक अहमियत है, और उनके वोट बैंक को ये नहीं कि सिर्फ रिलीजियस मौके पे आके जितना केवन करकिन फर्स्ट टाइम केम ओवर हियर, इट वाज सरप्राइज टू मी टू। थैंक यू सो मच जी आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू आशाना जी, दीदी जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल केविन फाल्कन का ईद प्रेयर्स में देखना, और वो एमपी के साथ जिन्होंने कहा कि बीसी लिबरल पार्टी मेरी मुट्ठी में है, तो अब लगता है बीसी यूनाइटेड भी उनकी मुट्ठी में है, क्योंकि वो जहाँ जहाँ जाता है बीसी यूनाइटेड के लीडर उनके मुट्ठी में उनके साथ साथ ही जाता है। तो ये देखकर बड़ा अफसोस हो रहा है कि वोट बैंक जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी की इस तरह से लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को भी होशियार हो जाना चाहिए कि कुछ लीडर्स के हाथों अपने वोट नहीं बेचना है, सोच समझकर अपने वोट्स को इस्तेमाल करना है। ये देखो कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो हमेशा बिकने के लिए तैयार होते हैं अपने मुफाद के लिए, लेकिन आपने कुछ लीडर्स के मुफाद के लिए अपने वोट्स नहीं बेचना है। यू हैव टू बी वेरी वेरी अप फ्रंट कि ये मुल्क कनाडा है जहाँ हमारे फ्रीडम है, हमारे राइट्स है, और हम अपने वोट्स खुद ही देंगे, किसी के कहने पर, किसी के इन्फ्लुएंस पे नहीं देंगे। We'll be right back after a quick commercial break. ओहो रात ਦੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਢਿੱਡ 'ਚ ਚੂਹੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ 24 ਆਵਰ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਬਣੋ ਆਨੰਦ। ਬਾਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਰੀ ਵੈਜ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ। 604-596-1990। ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਿੱਟੂ ਲਈ ਗੋਟ ਮੀਟ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 100 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬੁੱਕ 604-518-7444 ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ। ਮੇਲਾ ਮੇਲੀਆਂ ਦਾ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਬੀ ਔਲਖ ਤੇ ਸਹਿਬਾਜ ਐਂਟਰਟੇਨਰਸ। ਜੁਲਾਈ 16 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ, ਮੇਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਸੋਨ ਸ਼ੰਕਰ, ਮੱਗਰ ਅਲੀ, ਜੋੜੀ ਨੰਬਰ 1 ਲੱਖਾ ਨਾਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ ਸੋਨੂ ਪੰਡਵਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਨਾ ਲਾਇਆ ਭੰਗੜਾ ਸਟਾਰ ਗੋਲਡਨ ਸਟਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੇਲਾ ਮੇਲੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਡੇਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604-728-5339। ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, फाइन प्रिंट्स ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ये सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद रियल्टर ही कर सकते हैं। घर बेचन दा मन बनाया या घर खरीदना चाहते हो, सही ते भरोसेयोग सलाह दे लिए कॉल करो 30 साल दा तजुर्बा रखन वाली रियल्टर कुलजीत कौर नू। SRS Panorama Realty 604-767-9992 604-767-9992 कुलजीत कौर। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604-597-1119 ਤੇ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਮੈਰਿਜ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 209-7928-128 ਸਟੇਟ 604-597-1119 ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ।
ਕਮਾਓਏ ਫੋਨ 604 231 9592। ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 604 231 9592। ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਕਾਲ HTA 604-231-9592। ਕੱਕਾ ਖੱਕਾ ਗੱਗਾ ਖੱਗਾ ਘਰ ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਲੈਨਟ ਗਰੁੱਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2100 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਬਣੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ 6047168570 604 716 8570। बिरयानी गोट कढ़ाई निहारी चिकन कढ़ाई बाबा की बीफ कबाब कढ़ाई ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਤਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੇ ਡਿਸ਼ਸ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਹੋ या फिर गोट कढ़ाई, कल दे डिनर भूल नहीं सकती। अभी भी हाथों से खुशबू नहीं जा रही। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਗ੍ਰਿਲਡ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ, ਵਿੰਗਸ, 버ਗਰ, ਪੈਰੀ ਪੈਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੋ 8223 120th ਸਟਰੀਟ ਡਲਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 2364661119। एक बारी हाउस ऑफ चिकन दी बिरयानी खाओगे पाकिस्तान दी बिरयानी भूल जाओगे। हाउस ऑफ चिकन। ਮੀਡੀਆ ਵੇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਾਲੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ICBC ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੇਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਪਣੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਗੁਰਮੁੰਨਾ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ 6045030988। ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1620 78 ਤੇ 132 ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 14134787 ਐਵਨਿਊ 604 503 7007 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ info@greatblindscanada.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਹੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਕੇਟਰਿੰਗ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 150 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 671 1400 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੈਜ ਨੌਨ ਵੈਜ ਥਾਲੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਠਾਈ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਭਾਜੀ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ 128 1585 ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604671 1400 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਪਰਕ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ। ਔਰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕ ਆਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਈਦ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਯਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਤਖਾਬ ਅਹਿਮਦ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਈਦ ਦੇ प्रोग्राम ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ करनी थी कि तुसी अच्छा जी मैं उर्दू में बात करूं हिंदी में या उसमें? नहीं, आपने तो पहले अपना आइडेंटिटी ही रॉन्ग बताया। वैंकूवर के जान दिल अपना पाकिस्तान इंतखाब अहमद। हाँ जी शाना जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस चाहत और मोहब्बत से आप मेरे शो का नाम लेती हैं, और मेरा शो नहीं है ये वैंकूवर की जान, जो लोग वैंकूवर में हैं पूरी दुनिया में देखते सुनते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा ये वो है हौसला है जो आपने दिया है। शुक्रिया बहुत बहुत। वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान इंतखाब अहमद बात कर रहा हूँ। अपने सुनने वालों के लिए लोअर मेनलैंड बल्कि जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा सुना जाएगा उनके लिए ये बात मैं करना चाहता हूँ कि ईद पे जिस तरह से
गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स या पॉलिटिशियंस आए थे, उनको जो प्रोटोकॉल दिया गया है वो प्रोटोकॉल अपनी जगह पे है, लेकिन हमें जो ये नंबर्स भी शो करने होते हैं कि भाई हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है और इस कम्युनिटी की जो जायज़ ज़रूरियात हैं या सिटी की सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज जो भी है, और ये हमारे मुद्दा हैं बहुत सारे, उनको हमें पेश करना है। लेकिन मेरी नज़र में सामने फ्रंट स्टेज पे देना वो एक, क्योंकि बहुत प्योरली ये इस्लामिक रिचुअल्स हैं, ख़ास तौर पे इस ईद के, जिसमें तकबीरात पढ़ी जाती हैं और लोग अपनी जो अटेंशन है वो सिर्फ डायरेक्ट अल्लाह की तरफ करते हैं, और उसमें फिर पॉलिटिकल टॉक होना, स्पीचेस होना और बहुत सारे मौके होते हैं उन्हें दिया, वो करते हैं अपने तौर पे भी। लेकिन अगर वो उन्हें हम ये अपनी स्ट्रेंथ शो करते कि भाई ये हम इतने लोग हैं और ये सिर्फ एक जगह है सरे में जहाँ पे इतने कई हजार लोग इकट्ठे हुए हैं और बहुत जगहों पे इज्तिमा हुए थे बहुत सारे, और वो भी स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है। तो मेरी नज़र में, मैं पहले दिन से मैं आपको बताऊं, जब सारे मस्जिद में भी एक पॉलिटिशियन को लाया गया, वो बहुत अरसे की बात है, 15-16 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और वो ईद की नमाज पे जब इसी तरह की तकबीरात हो रही थी, उन्होंने और अभी भी आई मीन करते हैं, जो कि पॉलिटिकल लोगों को ऐसी रूहानी जगह पे मेरे ख्याल में आकर अपनी पॉलिटिकल विजिबिलिटी नहीं शो करनी चाहिए, और उन्हें उनके लिए बाकायदा एक और जगह हो, मेंबर देना, मेंबर के जो इमाम की जगह है उस पर खड़ा करना मेरी नज़र में ऐसे मौके पे ख़ास तौर पे नहीं सही, क्योंकि बहुत सारे मल्टीकल्चरल हॉल्स हैं, मस्जिद के अंदर भी मल्टीकल्चरल हॉल है, वहाँ पे आप उन्हें जगह दें और वो मेंबर पे नहीं आने चाहिए। ये मेरी ओपिनियन है। आप ने मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है, और इस पे जो है कि पॉलिटिकल स्कोरिंग करने के लिए वो जगह मेरे ख्याल में सही नहीं थी, लेकिन हमें नंबर भी शो करने अपने, और जब नंबर शो करेंगे तो फिर हमारी विजिबिलिटी होगी और हमारी बात को सुना समझा जाएगा। तो ये मेरे राय है, आप इसके बारे में आपका जो है इनिशिएट करना इस बात को, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। आज मेरी बात, दिल की बात आपने कर दी, जो कि मैं पिछले मेरे ख्याल में 15-20 साल से मैं जुबान पे नहीं ला सका था। आप इतने सालों से कम्युनिटी के मीडिया का काम कर रही हैं, और इस ईद पर, इस ईद के नमाज के बाद क्या आपको कम्युनिटी की तरफ से फीडबैक मिली है कि जो न्यूटन एथलेटिक पार्क में पॉलिटिशियंस के इस तरह के शो अप होना और उन्हें कुर्सियां दिया गया बैठने के लिए, और जो लोग नमाज पढ़ रहे थे वो प्रेयर मैट्स पे थे, इस तरह से शो किया गया कि हम लोग नीचे बैठे हुए हैं और ये पॉलिटिशियंस आकर कुर्सियों पे बैठकर एंजॉय कर रहे हैं, और हमें जो दर्जा दिया गया, इसके बारे में कम्युनिटी ने कोई आवाज़ उठाई आपसे? हाँ, वो ये ज़रूर कहा गया कि भाई ये जो है जब गुरुद्वारों में जाते हैं तो वहाँ पे रुमाल रखकर सर पर नीचे बैठते हैं, साथ ही सबके बैठ जाते हैं, तो क्यों नहीं इनका इंतज़ाम ज़मीन पे किया गया जैसे सब लोग बैठे थे। और मेरे ख्याल में वो बहुत ही अच्छा होता, सिवाय इमाम के हर बंदा जो है वो उसको ग्राउंड पे ही बैठना चाहिए था। और ये एक वाकई, इसको अगर आप कंपेयर करें दूसरे मजहबी मकामात की जो ट्रेडिशंस हैं उनके साथ भी अगर कंपेयर करें तो ये होना चाहिए था कि इन्हें ये ज़मीनी ग्राउंड रियलिटीज़ का भी पता चलना चाहिए, और सबको इक्वल ट्रीटमेंट की जो बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है, उसमें ये मेरे ख्याल में ये इक्वालिटी का
आंसर ज़रूर ऐसा हुआ है कि इक्वालिटी को मद्देनज़र नहीं रखा गया, और उसकी वजह से मेरे ख्याल में लोगों में ये बात ज़रूर है कि भाई हमें जो है सबको एक ही उसी लेवल पे बैठना चाहिए था जिस लेवल पे बाकी लोग बैठे हुए थे। इट डजंट मैटर आधे घंटे की उनकी थी, और स्पीचेस को मेरा ख्याल है बहुत लिमिटेड करना चाहिए था या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। नमाज के बाद बहुत अच्छा मौका था इंटरमिंगल करने का, और जो कि हुआ भी, लेकिन अपने पॉलिटिकल मैसेजेस देना वहाँ पे, जबकि हम बहुत ही सख्त सिचुएशन में इस वक्त फाइनेंशियली जो सिचुएशन है लोगों की, और इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि लोगों को डिस्कस करने, लोग उन लोगों को, पॉलिटिशियंस को मिलने के लिए अपने सारे जो वो इश्यूज हैं, मुद्दे होते हैं, वो भूल जाते हैं, और देयर इज हार्डली एनीबॉडी हु स्पीक्स आउट राइट व्हेन दे आर इन पब्लिक। कोई बंदा इनसे बात नहीं करता उन इश्यूज पे। मैंने ज़रूर बात की है 2 पब्लिक प्लेसेस पे हमारे पॉलिटिशियन से, ये एजुकेशन पे, जो एजुकेशन में नए सब्जेक्ट्स लाए जा रहे हैं, तो इस तरह की जो बातें हैं इनको हमें, जब हम इनसे इंटरेक्ट करते हैं तो ज़रूर हमें करनी चाहिए। और इवन और दूसरी चीज़ें भी जो इश्यूज हैं, ख़ास तौर पे मैं पहले भी जिक्र किया था सिटी टैक्सेस के बढ़ने का, और दूसरे के स्पेंडिंग का, आरसीएमपी और सारे पुलिस फोर्स का बैक एंड फोर्थ होना, और मनी का जो हमारी जो मनी मिस हैंडलिंग होती है उसको हम पता तो करें कि भाई हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपसे एक और सवाल करूंगी, मुझे कई लोगों ने कंप्लेन किया कि न्यूटन एथलेटिक पार्क पे नमाज वाला दिन, ईद के नमाज वाला दिन, पार्किंग के स्पेस नहीं थे, और कुछ लोग जब दूर पार्किंग करके 15 मिनट लगा उनको वॉक करके आते हुए, तो उन्हें बताया गया कि आप नहीं जा सकते बिकॉज इनफ लोग हो गए, ज़्यादा लोगों को नहीं दाखिल किए जा सकते थे, और उनके जो ईद का नमाज है वो मिस हो गया। इसके बारे में क्या कहोगे? मेरे ख्याल में यस, पार्किंग वाज अ मेजर इशू, बिग इशू। लोग भागे चले आ रहे थे, और फिर एकदम नमाज भी शुरू हो गई। आई नो द टाइम जो है वो 8:30 रखना, 8:30 रखना ड्यू टू सम रीजन, वो होगा, वो इनका अपना था मैटर। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत लोगों की नमाज मिस हुई है, और उन्हें दाखिला गाड़ियों का मना किया गया था। वो मैं क्योंकि पहले नमाज पढ़ ली थी मैंने एक दूसरे हॉल में, तो देन आई केम, आई आस्क्ड माय किड्स टू ड्रॉप मी देयर सो दैट अगर मैं नमाज यहीं पढ़ता और कुछ कवरेज करना चाहता तो वो मुश्किल होती मेरे लिए। तो मैं नमाज पढ़ के आ गया था, और मैं जब वॉक कर रहा था गाड़ी से मैं उतर के, तो मैनी पीपल वर स्टिल कमिंग, एंड बाय द टाइम आई रीच देयर नमाज खड़ी हो चुकी थी, जमात खड़ी हो चुकी थी। और उसमें ये है कि लोग स्टिल आ रहे थे, पार्किंग बंद थी क्योंकि पार्किंग इट वाज ओवरफ्लोन पार्किंग, तो लोगों को बाहर खड़ा करना पड़ी गाड़ियाँ, और उनकी जो नमाज, फिर ये होता है कि जमात हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों ने कुछ सेगमेंट्स ने बाद में की, लेकिन यस आई विल से दैट नॉट वेरी मैनी, बट बहुत लोगों की जो है वो नमाज मिस हुई है। इसी उसमें फैमिलीज की मिस हुई है, दे कुडंट वॉक, देयर किड्स कुडंट वॉक, देयर एल्डरली पीपल कुडंट वॉक, और उनके लिए बड़ा मसाइल थे वहाँ पे ना। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हम जगह की कमी थी ज़रूर वहाँ पे। थैंक यू सो मच इंतखाब जी, आपने जो वहाँ पर आप मौजूद थे, रिपोर्टिंग की, और आपने हमें जो आंखों देखा हाल वहाँ की थी आपने हमें बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया अपना शाना जी और कुलजीत बहन जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हैं, और इससे हमारी कम्युनिटी में अवेयरनेस आती है, और उसको हम चाहते हैं कि हर लेवल पे वो सॉल्व हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
बिल्कुल जो बातें कम्युनिटी में है, जो बातें सरी के अंदर है, सरी के दरमियाँ है, चाहे वो हमारे रिलीजन में है, चाहे वो हमारे पॉलिटिक्स में है, चाहे वो हमारे कम्युनिटी में है, इसके बारे में बात करना हमारा फ़र्ज़ है एंड दैट्स व्हाट वी आर गोना बी डूइंग। चलते हैं जी एक क्विक कमर्शियल ब्रेक। ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਰ ਨੰਬਰ 14 1347 78 ਐਵਨਿਊ 6045037007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ ਅਵਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 2533217007 ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ। ਮੀਟ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਮੈਰੀਨੇਟਡ ਮੀਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਲਈ ਵੈਜੀ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ। ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਓ। ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੋ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਵਾਕਰ, ਵੀਲਚੇਅਰ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਵਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 8925 ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਡੈਲਟਾ 6045990211 128 ਸਟਰੀਟ ਐਂਡ 96 ਐਵਨਿਊ 6045811900 1539 ਜੌਨਸਨ ਰੋਡ ਵਾਈਟ रॉक फैमिली केयर फार्मेसी। कल सारे बड़े खुश सी। होना क्यों नहीं खुश, पेट जो उनके खुश थे बानीज कढ़ाई वाला के डिशेस के साथ। बेस्ट कढ़ाई डिशेस ओनली एट बानीज कढ़ाई वाला। लाहौरी कढ़ाई, अचारी कढ़ाई, कबाब कढ़ाई। बस हुण नहीं रहा जांदा। बानीज कढ़ाई वाला है किथे? अपने सरी पिंड ते 8140 स्ट्रीट, सेकंड लोकेशन 12889 84th एवेन्यू सरी। फोन नंबर 7785654416। चिकन, लैम, वेज कढ़ाई, नॉन वेज करी, हर किस्म के एपेटाइजर्स, नान, स्टफ्ड चिकन और लैम नान, बिरयानी, इनके डिशेस का क्या कहना। एक बार ट्राई करोगे बानीज कढ़ाई वाला कभी नहीं भूलोगे। आप खुश, बानीज कढ़ाई वाला खुश। रोजाना खबरों विच असॉल्ट, सैक्शुअल असॉल्ट, थेफ्ट, ड्राइविंग ऑफेंसेस ते होर बड़े क्रिमिनल एक्टिविटीज बारे सुनते हाँ। कई बारी गऊमार हो जाती है। चालबाज लोग साऊ बंदे नूं फसा दिंदे ने ते नाले क्रिमिनल चार्जेस लगवा दिंदे ने। अगर तुसी भी क्रिमिनल चार्जेस का सामना कर रहे हो तो नौजवान वकील जो 4 प्रोविंस BC, अल्बर्टा, मैनीटोबा, ओंटारियो विच गुंझलदार केसेस जित्ते हैं। क्रिमिनल लॉयर गगन नाहल। आज ही करो कॉल क्रिमिनल केस जितण दे विच माहर वकील गगन नाहल नूं 604 527 4769 6625 A Street, Surrey. For all criminal charges, call Gagan Nahal 604 527 4769. ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਦੱਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾ 132 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ICBC accredited ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੋ 7823 132 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ 604 503 0988। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ। ਮੌਰਗੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਕਰ ਮੌਰਗੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਤੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਐਂਕਰ ਮੌਰਗੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ 7788802345 ਯੂਰ ਨੰਬਰ 204-2589 Cedar Park Place, Abbotsford. Anchor Mortgage Canada.
ਮੇਲਾ ਮੇਲੀਆਂ ਦਾ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਬੀ ਔਲਖ ਤੇ ਸਹਿਬਾਜ ਐਂਟਰਟੇਨਰਸ। ਜੁਲਾਈ 16 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ। ਮੇਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਸੋਨ ਸ਼ੰਕਰ, ਮੱਗਰ ਅਲੀ, ਜੋੜੀ ਨੰਬਰ 1 ਲੱਖਾ ਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ ਸੋਨੂ ਪੰਡਵਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ ਭੰਗੜਾ ਸਟਾਰ, 골ਡਨ ਸਟਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੇਲਾ ਮੇਲੀਆਂ ਦਾ, ਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਡੇਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 728 5339। ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ, ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਈਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਕਤ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਸੇਕ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। इस लिए सचेत होना आशाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही आपने कहा दीदी। और गिनती आप वैसे भी दे सकते हो, आप कहीं पर इवेंट कर सकते हो, पॉलिटिकल इवेंट कर लो। रिलीजियस इवेंट में नहीं गिनती देने की ज़रूरत होती है। कोई पॉलिटिकल इवेंट कर लो, फिर आप देख लो कि कितने मुस्लिम कम्युनिटी उस पॉलिटिकल इवेंट में शामिल होना चाहते हैं, कितने लोग उस पॉलिटिकल इवेंट में होना चाहते हैं, ज़रूरी जाना चाहते हैं। बिकॉज एवरी मुस्लिम हैज़ देयर own political thoughts, they have their own political rights। ज़रूरी नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ और दूसरा मुसलमान है जो उसका पॉलिटिकल व्यूज़ एक ही होवे। सो पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स ही रहने दो, रिलीजियस को रिलीजियस ही रहने दो। अगर कोई रिलीजियस इवेंट को पॉलिटिकल इवेंट बनाना चाहते हैं तो ऐसे लीडर्स की भी निंदा करो। टेल देम वी आर नॉट हियर फॉर सेल, वी आर नॉट हियर फॉर पॉलिटिकल सेल, डोंट डू दिस, डोंट ruin our reputation, we know whom to vote, don't tell us कि किसको वोट करना है किसको नहीं करना है। मेक श्योर करो कि ऐसे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं जो आकर आप लोगों को यूज़ करना चाहते हैं, और ऐसे जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनसे दूर रहो, बिकॉज दे आर द वंस हु आर द प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, नॉट अस, नॉट द कम्युनिटी। ऐसे लोगों से दूर रहो एंड टेल देम दैट दिस इज नॉट गोना हैपन टू अस कैनेडियंस। हो सकता है कि आप जिस मुल्क से आए हो वहाँ पर ऐसा होगा, लेकिन कनाडा में नहीं। We are Canadians, let us be Canadians। अगर सिटी से आपको कोई काम कराना है, सिटी के मेयर काउंसलर के साथ मीटिंग करो, कहो कि हम मुसलमान कम्युनिटी है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी को ज़रूरत नहीं होती है, हर एक कम्युनिटी को ज़रूरत होती है। हर एक कम्युनिटी अपने काम कराती है, और हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ हमारी आवाज़ हर एक गवर्नमेंट सुनते हैं। सो मेक श्योर करो कि अपने लिए कुछ कराना हो, लेकिन हाँ वो सही काम हो ना, गलत काम ना हो। गलत काम कोई नहीं करके देता, सही काम होगा तो हर कोई करके देगा। तो मेक श्योर करो कि अगर पॉलिटिशियन से या कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार से कोई काम कराना हो, डील डायरेक्टली विद द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल लीडर्स को बुला के दूसरे मुसलमानों की नमाज खराब नहीं करना है। डोंट डू दैट, ये गुनाह है और नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड बी सेफ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।